A very good afternoon to everybody present here. On behalf of Academic Committee of Institute of Science and Research, I extend my greetings and welcome to our Director of ISR, Dr. Premlata Gupta Madam, heads of different departments of IPS Academy, heads of various departments of Institute of Science and Research, and our first year students of UG and PG in the induction program 2022. A ray of light is a ray of hope. Let's all leave the darkness and step towards the bright path. In this induction program, we take the opportunity to officially welcome our new students and to congratulate them for becoming a part of our academy to begin a new career. Induction program is conducted to educate the new students about the environment in a particular institution. This program is aimed to make the new students acquaint with the infrastructure of the institute, facilities and resources, make them feel comfortable in the new environment, sensitize them towards exploring their academic interests and activities, and also make them strive for excellence. It inculcates in them the ethos and culture of our institution, promotes bond within them, build relations between teachers and students, and expose them to a sense of larger purpose and self-exploration. Students can use these resources for developing their career and become successful. We now inaugurate our program with the blessings of Mother Saraswati. Mother, we pray for your blessings to make this world a better place to live in harmony. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ISR IPS Academy, by its dynamism and persistence for seeking and adopting innovative methods to improve the quality of higher education, have become a recognized institute in national level. ISR provides excellent teaching and learning with cutting-edge research facility and outstanding results along with consistent merit positions in university. We strive to foster research and achieve academic excellence. I now welcome our spearing head who made this possible, a seasoned scholar and a navigator of this flagship, our director, Dr. Premlata Gupta Madam. Madam, I invite you to welcome for the welcome address. Touch me not, है ना? Very good afternoon and heartiest welcome to all the newcomer student and my colleagues, Valenkar sir, Jiten Tripathi sir, our placement director, Pradeep Joshi sir, Ruchi madam, Manish Pundlik sir, and Tapti madam, and all my faculty members. Once again, heartiest welcome to all. I feel you all are enough lucky to take admission in IPS Academy. IPS Academy is most premier institute of Central India. We are running 17 colleges under one roof and 2 more campuses. One is in Jhabua and one is in Saver. Running about more than 85 courses in
3 campuses. IPS Academy having Limca Book of Records and many more achievements. We have many feathers in our cap. Our faculty members mostly are PhD. We have Institute of Management and Research, IBMR, Business Management, having A++ ranking. Engineering Institute of IPS Academy is NBA accredited. IBMR having NRIF ranking. ISR having B++ NAC accreditation. We have 75th rank in India today, and in most emerging colleges category of India today, we have 9th position. So, we have great achievements. ISR, you took admission in one of the Institute of IPS Academy, that is ISR, Institute of Science and Research. Here we have 4 departments: Department of Physics, Department of Biotechnology, Department of Chemistry, and Department of Mathematics. Here we are running 13 UG and PG courses. We have research center in chemistry. There are about 15 faculties which are research guide, research supervisors affiliated with DAVV, and about more than 18 students are pursuing PhD under them. About 6 PhDs are already awarded. More than 85 research papers which are published in world famous Springer and Scopus research journals. We have consultancy projects, completed 25 lakhs, one of the research consultancy project. We have granted sub-funded research project of 40 lakh. So these are our great achievement. We always emphasize on research and innovation. You know, IPS logo is showing 3 I. What are these 3 I? Ignite, innovate, and implement. So again, our President Sir, Architect Achal Chaudhary, he is an IITian and has great vision. So he mostly emphasizes on nowadays our 5-year plan we included, and we have given a strong emphasis on research and innovation. This year we planned that the student from the BSc first year, we pick enthusiastic and those students which are mostly interested in research, we pick them 5-6 students and groom for research. And if they take admission in master's program, then the grant for research will definitely have a good amount, and you perform that research project. We have planned your research project for performing research project in summer vacations, in winter vacations, and that your research project and that research project will be published in UGC and Scopus named journals. So these are the opportunity that you get in IPS Academy. We have very well equipped laboratories, about 18 laboratories in ISR buildings which are fully equipped. There are some of the instruments which are
not included in syllabus. Their practicals are not included in syllabus. Still, we have purchased that for research purpose. About 7 research projects, government funded research projects have been completed. So I hope you should all be very focused and complete your 5 years here, UG for 3 years, and if you want to take honors degree, then you study here for 4 years, and for masters you have 5 years. We have many other skill development programs. You have, the IPS students, you will get in your 3-5 years tenure lot of opportunities to pursue groom your skills. We organize workshops, seminars, cultural activities, and academic activities. One of our academic activity is FEMER, that is a benchmark for ISR, that is IPSA Science Quiz. Every year we organize, so you will again have opportunity in that. So be motivated, very positive, put your 100% effort in your studies and other curricular activities. You will definitely achieve your goal. You can fulfill your dreams. So I hope you will be comfortable here and perform and give your 100%. All the best. Thank you so much. Thank you very much for your motivating and informative words. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. The placement cell plays a very crucial role in materializing your dreams. The placement cell operates round the year to facilitate contacts between the companies and our graduates. I invite the Director of Central Placement Cell of IPS Academy, Rajiv Shukla sir, to motivate our new students. Respected Premlata ma'am, my esteemed colleagues, and dear friends, good morning. ये स्कूल से बाहर नहीं आए हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग. Thank you. That's little better. See, placement is all about energy. Energy नहीं तो placement नहीं. So, need some. I'll talk about my journey with ISR. I still remember vividly. कि हर साल जब भी my earliest memories were with, I think, chemistry department. और एक चीज मुझे distinctly याद रही, because feedback आता था. एक feedback प्राइम था जो कि जिसके लिए तुम लोगों को गर्व होना चाहिए, वो भले BSc स्टूडेंट्स हों या MSc के हों. The feedback that I always got from industry was कि इन बच्चों से प्रैक्टिकल में कुछ भी पूछ लो, इन्होंने किया हुआ है वो. You will find many colleges जहाँ पर शायद लैब्स के ताले भी नहीं खुलते होंगे. This was one department where students, by nature of जो टीचर्स जिन्होंने परंपराएं संभाली, प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत जोर था. और इसी कारण इंडस्ट्री में यहाँ के स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से दूसरे स्टूडेंट्स के बजाय डिमांड बहुत थी, आज भी है. सो यू हैव अ लेगेसी वेयर
योर एकेडमिक्स हैज़ बीन हैंडल्ड बाय टीचर्स जिनको मैं नॉन इक्वल कहूँगा किसी से भी, कि ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे नहीं जो आपको इतना प्रेरित करते हों प्रैक्टिकल्स इवन थ्योरी के ऊपर मास्टरी के लिए। और यही सब व्हेन यू गो टू कंपनीज यही काम आता है। I won't, on your first day, I won't get you into what kind of companies that we can keep a separate session. But then there are 2 or 3 things that I'll like to emphasize. We'll separate the 2 batches in terms of how to do it. First is, for MSc students, on your first day of your college, create a target. Suppose I name a company, सबको मालूम होगी, ल्यूपिन सुना है सबने, सिप्ला सुना है सबने. If I say on the first day that मेरी ड्रीम कंपनी ल्यूपिन है, so that makes sense. Now, how do I link my dream to my targets? See, एक ड्रीम से शुरू होता है, लेकिन एक ड्रीम वो होता है जिसमें के लिए हम कुछ करते नहीं. Now we have a company, so we know कि आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो, आप अपने टीचर्स से पूछ सकते हो कि कौन कौन से राउंड लेती होगी ल्यूपिन. सो नाउ यू हैव अ बाइफर्केशन ऑन द फर्स्ट डे कि मुझे एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है. एनी बिग कंपनी, बी इट ल्यूपिन, बी इट वोकहार्ट, बी इट सिप्ला, ये सब एक कैटेगरी ऑफ कंपनीज. ल्यूपिन का मतलब सिर्फ ल्यूपिन नहीं होता. एनी बिग कंपनी विथ सेम स्टैचर लाइक सिप्ला, से वोकहार्ट, एन नंबर ऑफ pharmaceutical or chemical companies you will find. You need to be more communicative. See, you are dealing with, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो you deal with executives, vice presidents, general managers, जिनको तुम अपने results या जिस भी जॉब में, चाहे वो quality assurance हो, quality control हो, चाहे production हो, all these results have to be conveyed to your higher ups. और मूल मंत्र यदि आज से पकड़ लोगे तो तुम्हारा जो रैंक्स में चढ़ना है वो बहुत आसान हो जाएगा. तो पहला मूल मंत्र है बिकम कम्युनिकेटिव. कम्युनिकेटिव मीन्स अंग्रेजों की दुनिया है, सो अंग्रेज बन जाना इन 2 सालों में. इवन फॉर BSc स्टूडेंट्स यू हैव 3 years. यहाँ 2 साल नहीं है, हाँ याद रखना. फॉर MSc स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में तैयारी होती है, सेकंड ईयर में आप सिर्फ परफॉर्म करते हो कंपनीज में. सो मैक्सिमम 1.25 साल होता है आपके पास प्रिपरेशन को. सो यू हैव अ टारगेट ऑफ 1.5 year. यू हैव टू चूज योर ड्रीम कंपनीज मेंटली. यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या क्या प्रिपरेशंस चाहिए, एंड यू हैव टू बिकम इक्वली कम्युनिकेटिव. स्टूडेंट्स अलग अलग ब्रांचेस से होंगे, अलग अलग स्कूल से होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ वर्नाक्युलर मीडियम या हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम, जो भी आप सोच सकते हो उन मीडियम से हो सकते हैं. बट देन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ऑलमोस्ट 45 years, इंग्लिश वुड बिकम योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. So my emphasis on this first day is become communicative. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंग्रेज बन जाना. For BSc there would be 2 paths. कुछ BSc के स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी हायर स्टडीज को पहले कंप्लीट करना चाहेंगे और इसके बाद नौकरियां. कुछ BSc के स्टूडेंट्स हो सकता है अभी जो 3 साल में 3rd ईयर में जो कंपनीज आए उसमें भी बैठना चाहें. उनके लिए भी पाथ सिमिलर है. उसमें टारगेटिंग भले ही ना सोचो, लेकिन कम्युनिकेशन के बारे में अभी से सोच लेना
Even tomorrow, if you need a big college, a prestigious college, communication would be necessary. Suppose few of you go to MSc, few of you go to doing professional degrees like MBA or MCA. Communication would become a way of life. So for you also, my focus would be, you have 2 years to prepare yourself. Third year again companies come, you are asked to perform, और आप अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना चालू करते हो तो आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता. सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशंस दीज 2 years. एंड आई वुड बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन यदि इफ आई कैन फाइंड कि 2 साल के बाद और 1.25 साल के बाद एटलीस्ट कुछ बच्चे मुझसे कॉन्फिडेंटली बोल पाएँ कि यस, दोज वर्ड्स ऑन फर्स्ट डे चेंज्ड आवर वे ऑफ थिंकिंग. प्लेसमेंट इज नॉट एन एंड प्रोडक्ट, है ना. दैट ये मैं हमेशा कई बार बोलता हूँ कि प्लेसमेंट, आप यदि हायर स्टडीज के लिए भी जाते हो तो वो भी तो प्लेसमेंट ही कहलाएगा ना. मैंने अपने आप को अपनी कीमत बढ़ाने के लिए किसी एक जगह पर स्लॉटिंग दी, है ना. दैट इज प्लेसमेंट. आई पोजिशन माई सेल्फ इन मार्केट, दैट इज प्लेसमेंट. सो मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाना चाहता हूँ, उसके बीच का सफ़र कैसे तय होगा वो मुझे पहले दिन ही तय कर लेना पड़ेगा. और उसी के लिए ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. ईदर यू आर प्लेसेबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, या कई स्टूडेंट्स को तुम अपने घरों में भी देखते होगे जो आखिरी दिन तक भी प्लेस नहीं हो पाते. कारण माइंडसेट, हमने सोचा ही नहीं तो पाएंगे कैसे. So start thinking on those lines, start improving your mindset, start motivating yourself, and last but not the least, be energetic these 3 years. अब ये कोई 12th नहीं है कि तुमको धक्के देके घर से भेजा जाए, तुम टिफिन खा के और थके कदमों से वापस घर चले जाओ. This is a place where you learn instead of being taught. 12वीं में पढ़ाते थे ना तुम्हें, यहाँ तो हर चीज़ सीखनी पड़ेगी. So make sure that you maintain your energy levels, maintain your motivational levels. मैं यदि खुद को मोटिवेट नहीं करता तो मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं आज हूँ. मैंने सोचा तो हुआ. So अपनी सोच को अपनी एनर्जी के साथ मिला देना, मोटिवेशन अपने आप बनने लगेगा. जैसे जैसे तुम चीज लेवल्स क्रॉस करते जाओगे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ गेम्स खेले होंगे ना ऑनलाइन, जैसे जैसे तुम लेवल्स पार करते हो तो मोटिवेशन मिलता है ना कि इस बार ये वाला लेवल पार कर लिया, इस बार ये वाला लेवल पार कर लिया. तो एजुकेशन और रिवॉर्ड्स भी ऐसे ही आते हैं. जैसे जैसे तुम्हारे एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं, जैसे जैसे तुम्हारे टारगेट्स डिफाइन होते हैं, जैसे जैसे तुम्हारा माइंडसेट इंप्रूव होता है, वैसे वैसे यू आर मोटिवेटेड बिकॉज यू नो कि यू आर क्रॉसिंग दोज लेवल्स. सो आई होप ऑल द सक्सेस फॉर ऑल ऑफ यू इन द फ्यूचर टू कम. ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है. विल कीप मीटिंग अगेन एंड अगेन, एंड आई होप यू हैव अ bright future here and your life remains an exciting life in this college. Welcome once again and thank you so much. Thank you so much for your valuable guidance. Students, you need to follow this guidance if you want your dreams to turn into reality. You need to indulge in more creativity, talent, and co-curricular activities and hone your leadership skills. I request our in charge of Cultural Committee of IPS Academy, Dr. Manish Punlik sir, to say a few words on the Cultural Committee. Sir is also Nodal Officer for Scholarship Cell of IPS Academy. And I would like to request sir to give highlights on certain scholarship schemes to you all. Punlik sir.
Good morning, one and all. I am Dr. Manish Pundlik, Head, School of Computer Science, IPS Academy. अभी प्रिंसिपल मैम ने भी काफ़ी कुछ आपको बताया. हमारे राजू शुक्ला सर, प्लेसमेंट ऑफिसर, डायरेक्टर एड प्लेसमेंट्स, इन्होंने भी गाइड किया. मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा. आई हैव टू टास्क ओवर हियर. मुझे भी नहीं पता था, सर ने मुझे बुलाया तो कि मुझे क्या बोलना है. एक्सटेम्पोर जैसा रहा मेरे लिए कि सर आपको भी कुछ बोलना है. मैंने कहा ठीक है. बीइंग ए टीचर वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द स्टूडेंट्स. तो आपका और हमारा कनेक्शन इसलिए चलते रहेगा कि आपके जो भी कंप्यूटर्स के जो भी पेपर्स रहेंगे थ्रू आउट 3 years, वो हमारे यहाँ से फैकल्टी आएगी. तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप है. तो आई एम द पार्ट ऑफ योर फैमिली मेम्बर ऑल्सो. और बीइंग ए कल्चरल हेड, आपका खुद का भी इंडिविजुअल जो कॉलेज है, उस कॉलेज का भी इंडिविजुअल कल्चरल डिपार्टमेंट है. तो आपकी भी एक्टिविटीज़ होगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा जो कॉलेज है IPS एकेडमी, उसमें हम लोगों ने जो है वो सबको ज्वाइन करने के हिसाब से हमेशा से कुछ इस टाइप का एक कुछ ऐसे परंपरा जैसा रख के रखा हुआ है कि वी आर गैदरिंग कॉमनली ओवर ईयर. तो हम लोग जो है काफ़ी इवेंट्स कॉमनली जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. और कॉमनली सेलिब्रेट करने के पीछे जो इंटेंशन है कि हम लोग एक दूसरे को जान सके कि कॉमर्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, या फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, या अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी मैनेजमेंट के आपके प्रिंसिपल मैम ने बताया आपको कि यहाँ पर n नंबर ऑफ कॉलेजेस है. तो आप लोग उन लोगों से इंटरेक्ट कर पाए. तो इंडिविजुअल भी आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी और कल्चरल होगी. और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग कॉलेज में जो है वो 7 नवंबर को हमारा जो फाउंडेशन डे रहता है, उस ओकेजन पे हम थ्रू आउट वीक हमारा प्लान है कि कुछ न कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें. अभी तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ कि क्या है, पर श्योरली हमारे पास में काफ़ी कुछ अच्छे इवेंट्स है जो हम आपको बताएंगे. ठीक. पर मीनवाइल मेरी इच्छा है कि जो हम लोग है DVV से एफिलेटेड कोर्स है, तो यूथ फेस्टिवल होता है. यूथ फेस्टिवल जो है वो आप लोगों के लिए है. पूरे DVV में आप जो PG हो स्टूडेंट हो या UG स्टूडेंट हो, तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द यूथ फेस्टिवल इवेंट. तो उसमें n नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे. उसकी जो भी सर्कुलर से जो मेरे पास में अगर बीइंग ए हेड मुझे मिले, तो मैं आपके जो कल्चरल डिपार्टमेंट के हेड है या आपके कॉलेज में भी आपके पास आ जाएंगे. तो ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट्स. ठीक है. तो वो एक आपको करना है, यूथ फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेशन करने का है. क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग जो ने n नंबर ऑफ प्राइजेस वहाँ पे जीते हुए. उसके अलावा हम लोग जो है वो कॉलेज में भी n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करते ही है. नोडल स्कॉलरशिप का मैं हेड हूँ. तो जो बच्चे जो स्टूडेंट बिलोंग्स टू द स्कॉलरशिप जिसको भी रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, वो बहुत सारी यहाँ पर स्कॉलरशिप्स जो भी फैसिलिटीज़ जो भी है गवर्नमेंट की, और आप जिसके अंदर आते हो, तो वो आपको सबको जो है वो आपके यहाँ के जो डिपार्टमेंटल हेड है वहाँ से आपको मिल जाएगा. और अगर आपको अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई समस्या आती है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी ऑल्सो. तो वो बड़ा ऐसा टास्क नहीं है स्कॉलरशिप का, वो गवर्नमेंट से आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी. ठीक. उसके अलावा जो एक मेरी इच्छा रहेगी कि हम लोग जो है कॉलेज लेवल पे एक डिबेट कंपटीशन जरूर रखेंगे. मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि अगर बच्चे डिबेट में अगर जीते, तो मेरे अंदर से राजू सर इज एग्रीड फॉर थिंग कि हम लोग जो है वो GD वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं कंपनी के लिए. तो आप अपडेट रहे, हमेशा अलर्ट रहे, और नए इनोवेटिव आइडिया के ऊपर अगर आप काम करने में इंटरेस्टेड हो, तो मेरी इच्छा है कि हम जो है वो कॉलेज लेवल के ऊपर जो है वो इंटर कॉलेज मतलब दूसरे कॉलेज के साथ में भी डिबेट कंपटीशन का एक बड़ा प्लान करके रखा हुआ है. और मेरी पर्सनली बड़ी इच्छा रहती है कि स्टूडेंट्स को डिबेट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए. वेदर वो पक्ष या विपक्ष, मुझे ज़्यादा नहीं पता, वो दोनों पार्ट्स रहते हैं उसमें. तो उसमें अगर आप करते हो तो दैट इज़ गुड फॉर यू. स्कॉलरशिप के अंदर जितने भी गवर्नमेंट्स के अंदर जितने भी स्कीम से वो आपको, मैं अभी तो आपका ये टाइम वेलकम का है, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे. एनी टाइम जो है आपके यहाँ के जो हेड है वो आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता देंगे. मैं आपको एज ए सीनियर फैकल्टी आपको ये टिप देना चाहूँगा कि आप अच्छी यहाँ पर जो है वातावरण यहाँ का काफ़ी अच्छा है, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है.
आपका केवल डिपार्टमेंट या आपका कॉलेज केवल इतना छोटा नहीं है, इतना आपका पूरा कॉलेज है। स्पोर्ट्स आपके लिए है, मेस फैसिलिटी आपके लिए है, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइब्रेरी भी है, मेरे यहाँ पर काफ़ी बड़ी कंप्यूटर लैब है। एनी टाइम आप कभी भी वहाँ पर आकर और कुछ भी फैसिलिटीज़ को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कर सकते हो। दोस्ती जो है वो आपस में जो है अच्छी बना के रखे, तो फ्रेंडशिप आपकी अगर अच्छी रहेगी आपस में तो यू कैन एंजॉय द थिंग्स। और सबसे प्लस पॉइंट है इस डिपार्टमेंट का या इस कॉलेज का बने, वो है आपका एलुमनी का है। हमारे यहाँ पर जो है एन नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो बच्चे जो है वो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जा चुके हैं, ग्रेजुएशन के भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी। आपके बीएससी से भी काफ़ी बड़ी जगह पे जा चुके हैं, इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से भी काफ़ी अच्छे इस पे जाके। तो आप एलुमनी का एक हमारा बहुत बड़ा पोर्टल बना हुआ है। इनफैक्ट हमारा नोडल जो है अपना जो नेक के लिए हम लोग जो काम करते हैं उसमें भी आपको मिलेगा कि एलुमनीज के साथ में अगर आप कांस्टेंट टच में रहोगे तो डेफिनेटली शायद शुक्ला जी भी उसके लिए एग्रीड रहेंगे कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि जब और एक और जो दूसरा प्लस पॉइंट है रिटेंशन, जिसको मैं बोलता हूँ कि आपके यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है वो मुझे लगता है मोर देन 15 ईयर्स पुरानी सारी फैकल्टीज़ है, तो वो उन बच्चों के साथ में ज़्यादा कनेक्शन में। मैं रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे यहाँ का जो एक स्टूडेंट है जिसने BCA पास किया था, वो 98 पास आउट है और राइट नाउ उसका नाम है गुलजार आज़ाद। यू कैन राइट डाउन दैट नेम, गुलजार आज़ाद। आप उसको सर्च कीजिए गूगल में तो आपको गूगल पे ही मिलेगा कि वो गूगल का कंट्री हेड है। तो अचानक ही किसी कारण से उसको कुछ काम आ पड़ा और अचानक ही वो मुझसे कनेक्शन में आया और ही इज़ रेडी टू कम डाउन ओवर हियर। मेरी इच्छा है कि वो आप लोगों से भी इंटरेक्ट करे। वो इट माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट मंथ में उसका इंदौर आने का जो है वो कुछ इवेंट है, तो उस इवेंट में आ रहा है और डेफिनेटली ही विल बी कम। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो गुलजार से भी मिले और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं, ग्रेजुएशन उसने यहाँ से किया है तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर है आपको लेके। तो ऐसे एक एग्जांपल बता आपको, तो एन नंबर ऑफ बच्चे स्टूडेंट्स आपके पास में रहेंगे। वंस अगेन मोस्ट वेलकम, हार्टिस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। आप एंजॉय करें और खुश रहें और मज़े करें, ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. The emotional, physical, social, and above all, mental health of students is essential for the growth of the individual and the institution. When you grow, the institution also grows. I welcome Dr. Tapti Rai Yadav, ma'am, to introduce the Wellness Center to our students. Ma'am. Am I audible? So, a warm greeting to all of you here, everybody who is present. Everybody has been telling you a lot many things about scholarship, placement schemes, and how to study, how to go further in research, how you can create your identity, and lot more things. I'm one person who is here. Probably I won't be able to guide you much on what to do. And I'm here to listen what you want to do in life. So whenever there is a conflict, there will be unrest. And whenever there is unrest, you'll be confused. So at the times when you are confused, it's human tendency that we tend to see more negatives than positives. It's natural. परेशान होते हैं तो सब तरफ परेशानी दिखाई देती है, खुश होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और जब परेशान होते हैं तब भी आप किसी से बांटना चाहते हैं, खुश होते हैं तब भी बांटना चाहते हैं। और जिस एज में आप हैं, आप एक्चुअली बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये खुशी वाला दौर है कि परेशानी वाला दौर है। इमेजिन यू हैव गॉटन 2 स्कॉलरशिप एट द सेम टाइम एंड यू गॉट टू मेक अ चॉइस। तो परेशानी का दौर है, खुशियों वाला दौर है। कोई भी 2 प्रोजेक्ट एक साथ आया, चूज़ करना है, कंपल्सरीली एक ही चीज़ चूज़ करनी है। कैलिबर है ना, इसलिए 2 ऑफ़र हैं, तो खुश होना चाहिए।
बट एक छूट जाएगा और हमें ही डिसाइड करना है तो हम परेशान हैं। तो हर वो खुशी का दौर जिसमें हम खुश हो सकते हैं, हम परेशान हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन होना तो अच्छी बात है। जस्ट इमेजिन, हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं ना, बहुत गरीब सा एक बच्चा बेचारा परेशान हो गया है, कौन सा वाला आउटफिट पहनना है, कौन सा धोना है, कौन सा आज पहने, यही है, ये सीख आज धोना है कल उसे पहनना है, सिंपल। जिनके पास बहुत सारे हैं कपड़े वार्डरोब में, उन्हें 10 मिनट लगते हैं चूज़ करने में। तो ये जो चॉइस है ये परेशानी है, और ये जो चॉइस है जो आपके पास अवेलेबल है यही खुशी है, नहीं? All of us are very happy that we have options in our wardrobe to choose from. So the more choice you have, the more confusions it will create. The more confusion creates more conflict. Conflicts puts you in distress, and whenever, wherever, in whichever condition, if you ever suffer this very question mark, ab kya kare? So I have a solution for that. You can always come to me. I sit there in the Wellness Center, room number 11 and 12, in Center Placement Cell. I'm Dr. Tapti Roy Yadav, a qualified psychologist. And for your information, I'm not a clinical psychologist. तो आपको मेरे पास आने के लिए परेशान होना ज़रूरी नहीं है। आप मेरे पास आ सकते हैं अगर आपके पास कन्फ्यूजन है। आप मेरे पास आ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं। और आप मुझसे मिल सकते हैं जब आपको ये अंदाज़ा ना हो कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड साइकोमेट्रिक प्रोफाइलर, सो आई कैन हेल्प यू हाउ टू असेस योर ओन पर्सनालिटी। ऑल ऑफ योर साइंस स्टूडेंट हियर, जब हम लोग केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं, टाइट्रेशन, सबको वो आखिरी बूंद पिंक वाला दिखाई देता है जिससे वो पिंक पर्पल में टर्न हो जाएगा। ऑल ऑफ यू हैव रेड फिजिक्स, सबको ये सिखाया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिखता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। द प्रिज्म इज मोर entertained or more used to see the vibgyor inside than the angles, क्योंकि वो जल्दी से दिखता नहीं है। सबको पता है पैरामीशियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप के लेंस के अंदर रखेंगे तो दिखाई देगा, बट आपके बिहेवियर में, आपके मन में, आपकी सोच में जो उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा बुरा, शायद, काश और बहुत सारा डॉट्स, ऐसा होता तो, ये जो सवाल हैं जो आते हैं और आपके मन को कभी बहुत हल्का कर जाते हैं, कभी बहुत भारी कर जाते हैं, वो दिखाई नहीं देता। कब पिंक पर्पल में टर्न हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। पैरामीशियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो सही, बट वो शू शेप्ड है, वो दिखाई नहीं देता। तो जब आप अपने अंदर देखना चाहें, जब खुद को देखना चाहें, तब आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं कौन हूँ ये बता पाना बहुत मुश्किल है, बट आप कौन हैं ये जानने में मैं आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ। सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम एंड आई विश यू अ हैप्पी लाइफ अहेड। Thank you very much for the healthy perspective you have given us. Thank you so much for the time you have given us. Thank you, ma'am. Albert Einstein quoted, "The only thing that you absolutely have to know is the location of the library." So I welcome our in charge of Department of Library and Information Science, Sapna Jojare madam, to address us. Good morning to all. Respected Principal Ma'am, all HOD and faculty members and student, my dear student, welcome to the IPS Academy Indore. Myself, Sapna Jojare, Head Librarian in Central Library in IPS Academy Indore. Today I introduce our department, ISLE and department, Central Library and Library Science Department. In our Central Library, we have 35 books available related to your subjects, general books and competitive books also for your studies and your choice. Journals and magazine facility and news facility, newspaper facility also provided to all students and faculty members and all the things. Digital library and e-resources facility for the available to the students and faculty members for their research and research papers and articles also. We have subscribed 3 types of e-resources like
Delnet, Nimbus, Enlist, and other e-Pearsons. It's supportive for your research and articles, for your research and subjects. It's having e-journals, e-magazines, and e-books also. Our facility are, our services provided for the students, issue returns facility for the student, it's for 15 days. For UG students, we have provided 3 books for the UG students, then 4 books provide for the PG students. Reference services also provided for the students and faculty. It's only for the library. You can read this type of books in only library. We are using a OPEC in our library. OPEC facility provided to the student. You can search your own book as per your choice for regarding to your subject, regarding to related your paper e-resources. You can search help to OPEC, which is available in our library. Different type of data we are maintaining in our library, like 35,000 books, 36 encyclopedia, 757 CDs. It's for issuing for the students. You can issue for the CD also. 74 competitive books. It will support you for your career and your guiding also. 1370 journal books and 444 bounded periodicals. It's old periodical. If you want to search any type of article related to your subject, related to your paper, so you can search periodicals, old periodicals. We are maintaining an old question paper also. If you want an old question paper, so you can provide and search our library. 10 magazine, 06 newspaper, and 35 journals. It's subject related your subjects. So you are most welcome to our Central Library, IPS Academy, Indore. One other thing is we are running one courses, Bachelor of Library Science. It's a courses, it's a degree courses. It will be become a after graduation. It's a 1-year courses. It will be help for your career. यदि आप ये कोर्स करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लाइक रेलवे है, बैंक है और हाई कोर्ट्स हैं, ऑल रिसर्च सेंटर्स हैं, यहाँ पर आप लाइब्रेरियन का जॉब इजीली पा सकते हैं. सो if you want any type of inquiry related to your this type of courses, you can contact me at a library. So you are most welcome, IPS Academy. Congrats and for your bright and bold future. Thank you. Thank you very much for the detailed information you have given the students. I would now like to invite Dr. Pradeep Joshi sir, Head Department of Mathematics, a spearing head to address our students with his immense knowledge. Sir, please. Faculty members and dear students, welcome to all newly admitted students from the Department of Mathematics. The Department of Mathematics was established in 2007 with its PG courses, and it was started in 2002 with BSc courses. Department of Mathematics having 13 merit positions in the DVV till date, and wish you all the best for your future. And one quote I have to say that here: believe in yourself and all that you are, know that there is something inside you that is greater than any obstacles. Study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to be up all nights. Just remember that the feeling was success is the best thing in the entire world. Thank you so much.
I now welcome our Head of Chemistry Department, Dr. Ruchi Srivastav Madam, to welcome and motivate our students. So how you are feeling, students? Fine? Very good morning to all of you. Say good morning. Okay. Very good morning to respected principal ma'am, all respected HODs, faculty members, and our newcomers. It's a time to start a new something new and to trust the magic of new beginnings. With these thoughts, I heartily welcome all our newcomers, science students, and IPS Academy Indore. Being head of department, it will be my sincere responsibility to introduce you with Department of Chemistry. Department of Chemistry established in 2003. And as you know that we are running MSc Chemistry, MSc Pharmaceutical Chemistry, and of course I should say that chemistry is major subject in BSc courses also. Also we have got research center in chemistry. Well, we have enough stuff in chemistry, but I would like to share a few of the things that you can avail from Department of Chemistry. The first thing is our assets, that are our instruments. Students, you are science graduates or you are in PG courses from any field, physics, mathematics, biotechnology. We have all type of instruments. Small instruments are there, sophisticated instruments are there, and pharma instruments are also there. Whenever you want to do any project from any, in your fields, in any disciplinary fields, you may avail that instruments from our departments. You get the facility to avail that instruments from our departments. तो एक ये facility आप avail कर सकते हैं. Second thing, I would like to share that all science departments are running value-added courses also. Value-added courses ऐसे होते हैं जो हमारे पढ़ाई से हटकर होते हैं. Like कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे 16 कोर्सेज हम लोग रन करते हैं. एंड दैट इन्फॉर्मेशन यू मे गेट फ्रॉम ऑल योर रेस्पेक्टिव हेड्स. और आप चाहें तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आप ये वैल्यू एडेड कोर्स करेंगे तो आपको देखो सर्टिफिकेट मिलता है. एंड दैट सर्टिफिकेट हैव वर्थ. इट विल मे अपग्रेड योर रिज्यूम ऑल्सो. आपका रिज्यूम के साथ साथ आपकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं. सो वैल्यू एडेड कोर्सेज भी आप साथ साथ अलॉन्ग दिस ड्यूरेशन आपके BSc और MSc में कर सकते हैं. हम सब बहुत मेहनत करते हैं. वी ऑल साइंस डिपार्टमेंट्स आर पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर योर फ्यूचर. Like we are arranging several conceptual classes. हम आपके लिए स्पेशल टेक्निकल सेशंस अरेंज करते हैं. हम आपके लिए बहुत सारी PD क्लासेस अरेंज करते हैं. लाइकवाइज इन सब का जो रिजल्ट आता है ना, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स. राइट, रिजल्ट जो मैंने वर्ड बोला, दैट विल बी प्रूफ कि आपका पढ़ाई अच्छी प्लेस पे हुआ है. जैसा अभी शुक्ला सर ने हमें एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि यहाँ प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं. यस, अच्छे प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसलिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, अच्छे कंपनीज में IPS को रिकॉग्नाइज किया जाता है. IPS के स्टूडेंट्स को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली जाती है. तो ये बहुत बड़ी वर्थ है हमारे लिए, और आप स्टूडेंट्स को इसको लेके जाना है आगे. राइट, सो आप लोग, जो मैं आपको बात बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग यहाँ बहुत एफर्ट्स डालते हैं, एंड दैट एफर्ट्स जो हमें दिखते हैं वो मेरिट्स के फॉर्म में दिखते हैं, प्लेसमेंट्स के फॉर्म में मिलते हैं. एज प्रिंसिपल मैम टोल्ड दैट वी हैव अराउंड 105 मेरिट्स इन अ होल साइंस स्ट्रीम. और आई मस्ट से कि केमिस्ट्री में 40 मेरिट्स आ चुकी हैं अभी तक. 5 गोल्ड मेडल्स हैं. ऐसे ही नहीं आते हैं. हम भी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स भी मेहनत करते हैं. सो आई एक्सपेक्ट कि यही चीज़ आप भी आगे ले जाएंगे. एंड व्हाट अबाउट प्लेसमेंट्स, सर तो बता ही चुके हैं आपको कि केमिस्ट्री इज़ नोन फॉर इट्स प्लेसमेंट. आप भी आए हैं प्लेसमेंट्स के लिए. एंड आई शुड से कि अभी लास्ट सेशन में अमंग 45 स्टूडेंट्स में से ओनली 9 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट. और वो भी इसलिए रह गए हैं क्योंकि उन्होंने या तो मना कर दिया है या फिर उनको बैठाया है तो वो क्लियर नहीं कर पाए प्लेसमेंट्स. तो दैट्स इट, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. छोटी छोटी मैंने आपको बातें बताई हैं, आप और मिलिए बिकॉज इट इज टाइम इज गोइंग. सो वी आर हेयर फॉर योर हेल्प. वी फैकल्टी मेम्बर्स, मी हेड और पूरा साइंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है. बहुत ज़्यादा टैलेंटेड फैकल्टी मेम्बर्स हैं. आप सबको अवेल कर सकते हैं, सारे फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. Much, ma'am. I would now like to invite a seasoned scholar, Dr. Jiten Tripathi, sir,
Head Department of Physics, to address the gathering. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप IPS एकेडमी में ISR में आपने एडमिशन लिया हुआ है और आपने यहाँ से अपनी कॉलेज जर्नी चालू करी हुई है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बताऊँगा, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स की यदि मैं बात करूँ तो आप कभी आए हैं हमारे डिपार्टमेंट में, इवन आप सब ने 12th तक फिज़िक्स पढ़ी हुई है, तो आप समझेंगे कि हम क्या काम करते हैं और क्या आपको हम बता सकते हैं। मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग एक स्काई गेजिंग प्रोग्राम रन करते हैं। आप सबको चांद तारों में तो बड़ा इंटरेस्ट होगा, है कि नहीं? तो यदि आप उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आएँ, और हमारे यहाँ पे स्काई गेजिंग के कोऑर्डिनेटर्स हैं। अक्टूबर का महीना आ रहा है और अक्टूबर से लेकर जनवरी तक दिस इज़ द बेस्ट टाइम जिस पे आप स्काई गेजिंग कर सकते हो। आप अपने घर से भाई बहन को भी ला सकते हो, शाम को हम एक्टिविटी करते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी ला सकते हो यदि इफ़ यू वांट, आपको आना है उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो। बट उसके लिए आपको हमको पहले से नाम देना होता है कि आप कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहा है। और ये हमारे डिपार्टमेंट ISR का एक बहुत यूनिक फीचर है। हम जब आप तो यहाँ थे, जो छोटे रहे होंगे, जो छोटे भी रहे होंगे, वीनस ट्रांजिट हुआ था, उसका हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट किया था। वीनस ट्रांजिट का जितने भी एक्लिप्स होते हैं उसको हम कवर करते हैं हमारे यहाँ पर। तो आज जैसे मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था सितंबर में दो एक्लिप्स होने वाले हैं। तो यदि मौसम अच्छा रहा, पानी नहीं गिरा और धूप निकली तो हम आपको वो एक्लिप्स भी दिखाएंगे। तो आप यू मोस्ट वेलकम, आप आएँ और उसको देखें। जहाँ तक लैब्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लैब्स हैं। हम मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटी में काम करते हैं। आप केमिस्ट्री वाले हैं, आप बायोटेक वाले हैं, आप मैथमेटिक्स वाले हैं, ढेर सारे आप अलग अलग फील्ड्स में पढ़ते हैं। यदि आप नैनो पे काम करना चाहते हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो पे कैसे आप आगे बढ़ सकते हो काम करके, चारों फील्ड के बच्चे, तो दे कम टू मी, वो हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है जिसमें हम लोग बहुत काम करते हैं नैनो के ऊपर। और रिसर्च पेपर की बात करूँ नैनो पे, तो आप उठा के देखेंगे तो तकरीबन लास्ट 3-4 ईयर्स में 20-25 रिसर्च पेपर नैनो टेक्नोलॉजी पे पब्लिश्ड हुए हैं। तो दीज आर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की बात, तो एक बहुत हमसे, मतलब मैं तो आई एम नॉट द राइट पर्सन, एक बहुत काबिल व्यक्ति हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वो आपको बता सकते हैं कि ये हम सबके गुरु हैं। हम एक्चुअली में वो जो बोलते हैं हम सब वो करते हैं, वो जो हमको बताते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली, रिलीजियसली फॉलो करते हैं। डॉक्टर वेलंकर सर हैं हमारे बीच में। और सर आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ, आपको उनसे अच्छा टीचर आपको कहीं मिलेगा नहीं। आपको उनसे अच्छा टीचर कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी फील्ड के आप उनसे मिलिए, वो आपको बताएंगे। तो विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल मैडम, मैं सर को 2 मिनट के लिए बुलाना चाहता हूँ। सर आएँ और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ISR के बारे में 2 शब्द बोलें, आप लोगों को वेलकम करें। सर प्लीज़ वेलकम। प्रिंसिपल डॉक्टर प्रेमलता गुप्ता मैडम, माय कलीग्स और प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। जब आप IPS छोड़ के जाओगे तो आपको इस बात का गर्व रहेगा कि आपने IPS एकेडमी में एडमिशन लिया। यह ऐसा इंस्टीट्यूशन है, यहाँ आपको जो चाहोगे वो मिलेगा, कोशिश आपको करना पड़ेगी। अभी आपने देखा आपको जॉब चाहिए, जॉब मिलेगा, स्कॉलरशिप चाहिए, 2 स्कॉलरशिप मिल सकती है, उसमें से एक आपको चॉइस करना पड़ेगा। हर चीज़ आपको मिलेगी। जहाँ तक लाइब्रेरी, बेस्ट लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आजकल लाइब्रेरी में जाके पढ़ने का ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन आप जाओगे तो आपको वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी।
जहाँ तक लर्निंग की बात है तो मैं आपको बताऊँ, ये जो विंग है आईपीएस एकेडमी की, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, इसका पहले नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड लेबोरेटरी एजुकेशन। इसके जो फाउंडर है वो इंडिया के जाने माने एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट प्रोफेसर बाबूलाल सराफ, उन्होंने इसे एस्टेब्लिश किया है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ की लैब के लिए ये इंस्टीट्यूशन पहले फेमस थी, बेस्ट लैब्स। और हमारे यहाँ ऑल इंडिया से यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स ट्रेनिंग लेने आते हैं। दूसरे कॉलेजेस के जो एमएससी के विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो लैब, आईएसआर की सब लैब क्लास 1 लैब से, लैब में जाके काम आपको करना पड़ेगा। यदि आप लैब में नहीं जाओगे, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप कितना सीखना चाहते हो। प्रैक्टिकल के नंबर तो मिल जाते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको लैब में जाके काम करना पड़ेगा। और हमारे टीचर्स उत्सुक रहते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज़ बढ़ गई। रिसर्च, सब डिपार्टमेंट में बहुत रिसर्च होने लगा, तो इसलिए इसका नाम बदल करके इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च कर दिया गया। तो यहाँ पर सभी सीनियर टीचर्स रिसर्च गाइड्स है। तो आप पीजी करने के बाद चाहो तो पीएचडी करके भी यहाँ से निकल सकते हो, इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। हम लोग आपको ऑफ द क्लास, यानी क्लास के बाहर यदि आप चाहते हो डिफ़िकल्टी, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। आप कभी भी आइए, संपर्क कीजिए, और हम आपको क्लास के बाहर भी पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी सभी फैकल्टीज़, सब डिपार्टमेंट की सब फैकल्टीज़, दे आर सो डिवोटेड। लेकिन कोशिश आपको करना पड़ेगी। आपको आके पूछना पड़ेगा कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, ये हमें पढ़ाइए। आजकल ये हो गया है कि भाई क्लास में ही लड़के कमाते, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप जो चाहोगे वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिन मांगे मोती मिले, वो काम नहीं होगा। आपको मांगना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी, और हर चीज़ आपको मिलेगी। जहाँ तक फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात है, हमारे पास बहुत बढ़िया मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप है। हमारे पास लेथ मशीन से जो फैसिलिटीज़ इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है वो हमारे पास है। और वो फैसिलिटीज़, लेथ मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्क है, टेक्नीशियंस है। और उसमें केवल ऐसा नहीं है फिजिक्स डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स यदि कुछ करना चाहते हैं, कुछ एपरेटस बनाना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं और बना सकते हैं हमारे यहाँ एपरेटस। हमारे पास टेक्नीशियन है जो आपकी हेल्प करेंगे। आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, प्रोजेक्ट करने के लिए आपको बोर्ड बनाना है, या कोई एल्यूमिनियम पीस है और आयरन पीस है, उसको शेप देना है किसी खास टाइप का आपके प्रोजेक्ट के लिए, हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे सर ने आपको बताया, हमारे पास 14 इंच का टेलीस्कोप है, जिसमें इतने बड़े बड़े बृहस्पति और शनि दिखते हैं, लेकिन उसके लिए रात को आना पड़ता है और वहाँ देखना पड़ता है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने आईपीएस एकेडमी में एडमिशन लिया है, आईएसआर में एडमिशन लिया है, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. I would now like to invite Dr. Dipali Shukla, Madam, in charge of Department of Biotechnology, to address the students. Very good afternoon to Principal Ma'am, all heads, seniors, my colleagues और बच्चों। अभी तक आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर बैचलर्स और मास्टर्स कुछ क्लासेस तो ले ही ली हैं हम लोगों ने, है ना? ले लिए हैं?
तो बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ने क्यों आए हैं? बायोटेक्नोलॉजी हम इसलिए पढ़ने आए हैं कि बायोलॉजी का एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के फॉर्म में करना है। हम साइंस क्यों पढ़ते हैं? साइंस पढ़ने का हमारा उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को और सरल बना सकें। हम इसीलिए साइंस को पढ़ने आए हैं। तो बायोलॉजी का यूज़ करके उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब हम करते हैं तब हम उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। हमारे यहाँ लेबोरेटरीज़ में हम लोग पर्टिकुलरली बायोटेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर कई तरह के काम करते हैं, जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट या फिर मेडिकल डायग्नोस्टिक, दोनों ही काम हम पैरेलली करते हैं। और अगर बात करें कि बायोलॉजी केवल और केवल बायोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को हटा के बायो फर्टिलाइज़र्स बनाने हैं तो हमें केमिस्ट्री वालों का मदद लेनी पड़ेगी। और अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आगे माइक्रो लेवल पर एनकैप्सुलेशन करके ड्रग की इफिकेसी बढ़ाना चाहते हैं, या फिर हम स्टडी करना चाहते हैं सैम और टेम पता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी या फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी, तो हमें फिजिक्स वालों की मदद लेनी पड़ेगी। और अगर हम इस पूरे डेटा को एनालिसिस करते हैं तो हमें मैथमेटिक्स वालों की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये कंप्लीट एक साइंस है और ISR में हम लोग साइंस पढ़ने आए हैं। तो आप लोगों से भी बस यही एक अपेक्षा है कि आप साइंस की तरफ बढ़ें, आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं साइंस रिलेटेड उनको निकालें और रिसर्च की तरफ अपना अग्रसर हों। यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. I would now like to invite Dr. Amita Joshi, ma'am, Cultural Committee in charge of ISR, to address the gathering. Good afternoon. Respected Principal Ma'am, heads of all the departments, faculty members and my dear students, I, Dr. Amita Joshi, Culture in Charge, with my team members, welcomes you all to IPS Academy. Objective of cultural activities is to help students keep in touch with the rich cultural values, customs and traditions. Students who enjoy all the aspects of performing arts like singing, dancing and other cultural activities are encouraged to join the events as they learn the skills. The ISR culture coordinators are Dr. Rena Jadhav Madam from Department of Chemistry, Mrs. Bavita Kohli ma'am from Department of Biotechnology, Dr. Mayank Sharma sir from Department of Physics, and Mrs. Megha Upadhyay ma'am from Department of Horticulture. I hope you all will actively participate in cultural activities in the institute, state and national level and glorify the name of the IPS Academy. Thank you. Thank you, ma'am. I would now like to invite Dr. Rena Jadhav, ma'am, who is in charge of Manthan, the magazine of IPS Academy, to give some highlights on the committee. Thank you, Razia ma'am. A very good afternoon to respected Principal ma'am, all HODs, ma'am, and my dear students. अभी आपको सभी ने बताया रिसर्च कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको आपकी हॉबी में आगे कैसे बढ़ना है ना। तो आपकी हॉबी, आपकी एक्टिविटी, आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए कॉलेज जो है एक मैगज़ीन निकालता है, एनुअल मैगज़ीन, दैट इज़ मंथन, है ना। सो इट इज़ टाइम टू शो योर स्किल्स, या कितनी आर्टिस्टिक स्किल्स हैं आपके अंदर, क्योंकि मेरे को पता है हमारे बीच में बहुत अच्छे पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, है ना, पर वो पढ़ाई के बोझ में दबते जा रहे हैं। सो इट इज़ द टाइम कि आप अपने आर्टिकल्स, पोएम्स और जितनी भी आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ है, बिकॉज इस बार जो मंथन का थीम है दैट इज़, मैम ने आपको पहले ही बताया था, 3I हैं। सो आइडेंटिफाई, इग्नाइट एंड इनोवेट। तो आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़, आर्टिकल्स, पोएम्स, जो भी आपके मन में आता है लिखें, हम लोगों को दें, वो आपके एनुअल जो मैगज़ीन है हमारी मंथन, उसमें पब्लिश होगा। हाँ, बस इसमें एक कंडीशन ये है कि इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड बी सेल्फ रिटन, है ना। कॉपी कट पेस्ट वाला काम नहीं चलेगा, है ना। क्रिएटिविटी कहाँ से आनी चाहिए? दिमाग से आनी चाहिए, गूगल से नहीं आनी चाहिए। फॉर दैट वी हैव अ कमिटी जिसमें मैं इंचार्ज हूँ, डॉक्टर रेना जाधव,
Anjali Devtare ma'am from physics, Dr. Dipali Shukla ma'am from biology, biotechnology department, and Amita Joshi ma'am from maths. आप किसी को भी दे सकते हैं अपने आर्टिकल्स as soon as possible. और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे पास इतने सारे पोएट्स और ये सब है, तो हमारे पास बहुत जल्दी बहुत सारे अच्छे वाले आर्टिकल्स आएंगे और वो सारे के सारे एनुअल मैगजीन में पब्लिश होंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कीप राइटिंग एंड कीप motivating and enhance your creativity. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Youth is not only a time of life, but a state of mind, a temper of the will, a quality of imagination, a predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the life of ease, as quoted by Robert Kennedy. Youth symbolizes strength. The qualities of youth shape an individual's level of dependency and career. As an individual grows, older society starts molding the person into what is desirable. During this process, they face lots of pressure. Some find their way successfully and establish themselves, while some indulges in pastime and social media, which harbors into their system. When they cannot balance the societal demand and needs, they face depression, leading to growing prevalence of anxiety and loneliness among them. Appropriate social media skills and proper support and guidance from parents, teachers, and friends can help them to counteract the negative impact and encourage them to revert them from depression. Today, we bring these thoughts and problems faced by youth to you through a short play by our students of ISR. I would like to invite Dr. Akansha Madam and her team for the performance. A big round of applause. Please put your hands together for our wonderful judges. पहले कंटेस्टेंट को जो फैलाए है दुनिया में अपना शोला, our one and only Ebola. मैं हूँ इबोला, अंदर से आग का गोला। अबे इबोला, तूने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है? बुखार, सर दर्द, न भूख लगे, सिर्फ आते हैं चक्कर, यूं ही नहीं हूं मैं इतना भयंकर। तूने तो मौसम बदल दिया, तू आ रहा है नेक्स्ट स्टेज पर। थैंक यू। इस मस्ताना शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए चलिए बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, जिसकी मिठास रग रग में दौड़ती है। चल भाई बीच में आके खड़ा हो। मेरा नाम है डायबिटीज, बच्चों से लेकर बड़ों तक, नहीं करता उम्र का लिहाज, पहचान में मुश्किल पर आसान है मेरा इलाज। अरे नेहा, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। सही कहा तुमने। तुम जनता को अपना कौन सा टैलेंट दिखाने आए हो? कर देता हूँ मोटा सबको, खाना पड़ता है करेला, सर लड्डू पेड़ा मिठाई छोड़ लग जाता है दवाइयों का मेला। बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए तो मुझे अपना गाना चेंज करना पड़ेगा, तुम साथ देना नेहा मेरा। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई शुगर फ्री डालने वाली हो। तुम बनोगे हमारी नेक्स्ट सुपरस्टार। थैंक यू। Well, it's time to meet our last contestant, जो कभी नहीं बना पाया अपना impression. Let's meet depression. जी हाँ, मैं हूँ डिप्रेशन। तुझे यहाँ किसने भेजा है? क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? मुझ में भी है काफी खूबियाँ, वही तो मैंने लिखी है वहाँ। तूने यहाँ ये लिखा है तो टैलेंटेड डिजीज है, ऐसा क्या खास है तुझमें? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, दोस्तों बड़ा दुखदायक हूँ मैं। हाँ खलनायक, तुझमें टैलेंट है, तुझे विनर बनना है, तो तुझमें क्या खास है? मैं लोगों को रुला दूं, मैं जोने सुला दूं, मैं जोने कर दूं बेबस और लाचार, मैं ही तो हूँ डिप्रेशन मेरे यार। इंटरेस्टिंग, बातें तो बहुत बड़ी करता है। इसके लिए प्रैक्टिकली प्रूफ देना पड़ेगा। जरूर दिखाता हूँ मेरा इफेक्ट आपको लोगों को।
चलिए देखते हैं कैसे करता है डिप्रेशन खुद को प्रूव। पोशंबा भाई पोशंबा, डिप्रेशन में क्यों जाना पड़ा? पोशंबा भाई पोशंबा, डिप्रेशन में क्यों जाना पड़ा? सिलेक्शन इसका हो नहीं पाया, डिप्रेशन में जाना पड़ा। सिलेक्शन इसका हो नहीं पाया, डिप्रेशन में जाना पड़ा। आज के बच्चे एग्जाम एंजाइटी और सिलेक्शन ना हो पाने की वजह से चले जाते हैं वो डिप्रेशन में। तो चलिए देखते हैं डिप्रेशन किसको बनाता है अपना अगला शिकार। पोशंबा भाई पोशंबा, डिप्रेशन में क्यों जाना पड़ा? पोशंबा भाई पोशंबा, डिप्रेशन में क्यों जाना पड़ा? सोशल मीडिया पर छा नहीं पाया, डिप्रेशन में जाना पड़ा। सोशल मीडिया पर छा नहीं पाया, डिप्रेशन में जाना पड़ा। आज के युवा सोशल मीडिया पे लाइक्स डिसलाइक्स कमेंट्स के चक्कर में चले जाते हैं वो डिप्रेशन में। चल मेरे साथ। आइए देखते हैं क्या होता है जब अंशुल मिलता है अपने दोस्तों से। चल। क्या हुआ भाई तुझे? नहीं भाई कुछ नहीं। तू बड़ा परेशान दिख रहा है, कोई दिक्कत है क्या? यार बंदा ना कभी कभी बहुत परेशान हो जाता है, चाहकर भी किसी को कुछ बता नहीं पाता है। हुआ क्या तुझे? बता, शायद हम तेरे दोस्त हैं, मैं तेरी मदद कर सकूं। नहीं यार, तू नहीं समझ सकता। यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी नहीं समझ सकता है। जिस शख्स पे बीत रही होती है ना, सिर्फ वो शख्स ही समझ सकता है। मैं समझ सकता हूँ, तू बता। तो यार मुझे डिप्रेशन है। क्या डिप्रेशन? अरे डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, आराम से तो घर जा और सो जा। चल मेरे साथ। अपने घर बैठ जाओ, सो जा। क्या हुआ बेटा, खाना लगा दूं? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। यार मैं परेशान हो गया हूँ इस डिप्रेशन से। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए। हा 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 हा। तू लोगों को बताएगा तुझे डिप्रेशन हुआ है तो अपने परिवार को बताएगा, दोस्तों को बताएगा तेरे को डिप्रेशन हुआ। ये समाज क्या बोलेगा तुझे कि तू पागल हो गया है। कोई नहीं समझेगा तेरे को, कोई नहीं कुछ करेगा, कोई तेरी मदद नहीं करेगा, सब तेरे को अकेला छोड़ देंगे। मैं तुझे बताता हूँ तुझे क्या करना है, चल मेरे साथ। अब डिप्रेशन देखते हैं क्या करता है अंशुल के साथ। जा जाके लेगा ना। मैम एक वाटर की बोतल देना। क्यों चाहिए तुम्हें बेटा ये? मैम मुझे कुछ काम था। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया देख देख के पता नहीं क्या क्या करने लगे। अब अंशुल फिर पहुंचता है अपने घर। कॉलेज से बात कर रही हूँ। जी मैम बोलिए। आजकल अंशुल का बिहेवियर थोड़ा सा क्लास में अलग हो गया है, वो किसी चीज़ का जवाब भी नहीं देता है। हमें ऐसा लग रहा है कि अंशुल को कुछ प्रॉब्लम है, तो सर प्लीज़ एक बार आप उससे बात करिए और समझने की कोशिश करिए। जी ओके। क्या हुआ बेटा, क्या छुपा रहे? नहीं माँ कुछ नहीं। देखिए कुत्ते और देखिए इसके पास में क्या मिला है। क्या ये तो पॉइजन है? तुम्हें कहाँ से मिला? अंशुल के पास से। अच्छा वो खाना वाना भी नहीं खा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं खा रहे, 4 दिन हो चुके हैं। अच्छा कॉलेज से भी उसके फोन आया था, टीचर बोल रहे थे वो गुमसुम और शांत सा रहने लगा है, हमें उससे बात करनी चाहिए। चलिए। ये अंशुल तुझे कुछ हुआ है? अरे कुछ बोलेगा? नहीं पापा, बस मुझे आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता। इतना शांत शांत सा क्यों रहने लगा है? क्या हुआ है? अरे कुछ बोलेगा? बोल अंशुल। ऐसे नहीं बोलेगा, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। काउंसलर के पास ले जाना चाहिए। चलो। नहीं नहीं। In this way, Anshul's parents have decided to seek counseling. नहीं। नमस्ते मैम। नमस्ते।
मेरा बेटा अंशुल है, ये कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा है, इसका बिहेवियर पैटर्न में काफ़ी चेंज आ रहा है। मैम देखिए ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? आओ बेटा, क्या आओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझसे शेयर करो। मैम, जब से मेरे वीडियोस पे लाइक्स आना कम हुए हैं और मेरे फॉलोअर्स कम होना स्टार्ट हुए हैं, मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया है। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बेटा, तो इससे परेशानी से तुम्हें तुम्हारा कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला है ना। ये तो एक लाइफ का फेज है, जहाँ पे कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट पे लाइक्स आते हैं तो कभी नहीं आते हैं। और तुम ये गलत कर रहे हो ना कि तुम अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हो, तुम अपने फ्रेंड से बातचीत करना बंद कर दिए हो। तुमने सोचा है कभी तुम्हारे पेरेंट्स को कितना बुरा लगता होगा? वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं और तुम डिप्रेस होके बैठे हो। ये तो बहुत गलत करने लग गए हो। बेटा, अभी के लिए तुम घर जाओ, अच्छे से खाओ, थोड़ा सोने की कोशिश करो, अपने फोन को सबसे पहले अपने से दूर कर दो, थोड़ी देर म्यूजिक सुनो और साथ ही साथ मेडिटेशन करने की कोशिश करो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ओके मैम, हमारा बेटा अंशुल ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ सर, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। आजकल के बच्चे ये डिप्रेशन में चले ही जाते हैं सोशल मीडिया के कारण। ऐसा होता रहता है, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। आपका बेटा ठीक हो ही जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके साथ साइकोथेरेपी करेंगे। हमें साइकोथेरेपी क्या होता है? साइकोथेरेपी मतलब हम बच्चे के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और एक अच्छा सॉल्यूशन निकालते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इसे मेरे पास लेके आए काउंसलिंग के लिए, वरना आजकल के पेरेंट्स समाज के डर से इस डिप्रेशन को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे एक बच्चे पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा सर, टेंशन मत लीजिए। In this way, with the help of psychotherapy, counseling, care, attention, and of course the guidance of his parents and mentors, Anshul's depression was cured in just a matter of time. लगता है अब कोई नया शिकार इनमें से ढूंढना ही पड़ेगा। Life without any empathy or any warning. दोस्तों, I hope हमारे इस छोटे से ऐप से आपने अपने relatives, दोस्तों या खुद को कहीं ना कहीं तो relate किया ही होगा। दोस्तों, हम हमारी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर डिप्रेशन से सफर करते हैं। But when we get to talk to anyone about depression, हमको सुनने में क्या आता है? भाई सो जा, डिप्रेशन कुछ नहीं होता। भाई तू पागल हो गया, लोग क्या कहेंगे? But in today's time, about 20% of teenagers have suffered depression, mild or severe. About 17% of them have attempted suicide. But जिन्होंने treatment लिया, only 2.8%. But with the help of our teachers, mentors, and of course our parents, this depression can be detected and can be cured. Thank you so much. Thank you for the lovely performance, lovely and igniting performance. This act was presented to you by Meet Mishra, Ananta Tare, Muskan Porwal from CS, Amisha Agarwal, Ridhi Chaudhary, Anshul Patel and Jeet Parihar from Biotech, Devesh Thakur from Chemistry and Tushar Goel from Maths under the guidance of Dr. Akansha Tripathi Madam. I think Tapti Madam wants to say something to you all, so I'll just hand over the mic to her. I mean, first I apologize, this was not scheduled. Next, I thank you for getting, ma'am, with permission, I will just take 2 minutes. I want that girl who played the role of depression. Will you please come to the stage? मुझे आपको जादू दिखाना है. खाली खाली परफॉर्मेंस से मज़ा नहीं आया. मतलब मुझको परफॉर्मेंस देखने में बहुत मज़ा आया, परफॉर्म किए बिना मज़ा नहीं आया. So I want to, play a magic. You're okay playing volunteer here, right? I'll take just 2 minutes of yours. And I need that wand. जो तुमने हेयर बैंड लगा रखा है, वो चाहिए था मैजिक के लिए. निकाल सकते हैं? ये करती हूँ मैं मेरे केबिन में. जब भी डिप्रेशन आपके पास आएगा, वो आपके पास से ऐसे हंस के जाएगा, बैंड मेरे पास रख के जाएगा. आया समझ में?
I hope it was understood. Whenever there is any anxiety, any depression, any disappointment, frustration, anger, aggression, anything that comes with a negative notch, come to me. जो भी आपके साथ आपके पीछे पीछे आएगा, अपना बैंड मेरे पास रख कर जाएगा. Thank you, ma'am. This year, Department of Biotechnology started the Scientific Activity Club. The first activity being the annual science magazine. The magazine took its shape with the articles from students on various scientific issues to create awareness and motivation in the field of science. I would like to thank our managing editor, Ms. Anushka Joshi, associate editor, Ms. Akshita Narsinghania, and their team for accomplishing this task. I would like to give my special thanks to our principal, Dr. Premlata Gupta Madam, for her efforts and support she has given us in its accomplishment. Thank you very much, Madam, for the launch of this annual science magazine. Without your help, it would not have been possible. I take this opportunity to invite Madam on stage, and I would also like to invite Tapti Madam and our different heads of ISR, Dr. Joshi Sir, Tripathi Sir, Shukla Ma'am, and Shivastav Ma'am on stage. Sapna Rojare Madam, please come on the stage. I would like to request our principal ma'am to kindly release the annual science magazine. Thank you very much, all heads and principal, for the inaugural release of the inaugural issue. Thank you so much. Huge congratulations to Biotech Department and student team for their wonderful efforts. I hope such type of the things will definitely progress, inculcate such type of the things in yourself will definitely go for the progress. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. I hope in our next issue, we'll have articles from all the departments of ISR. Let's now relieve our ears from lots of lectures with a musical treat by Tushar Goel from Maths Department, and he is accompanied by Jeet and Amisha from Biotech Department. तू क्या सोचता है, तू ही जान तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, सपने बूंद बूंद नैनों बूंद बूंद,
धीमे बोल कोई एक तारा, धीमे बोल कोई एक तारा, गूंज सा है कोई एक तारा, गूंज सा है कोई एक तारा। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा पे चाँद, चेहरे में जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, ये कैसी बात हो गई। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चला आया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। अगलावा मजबूरी नू आड़ जाड़ दे पसूरी नू, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू। आनसियो नहीं आया रास्ता ना दिखलाया, दिल हमारा थे सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू। रवाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे डोल जुदाइया दी तेन खबर किवे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। हाँ बड़िया बड़ाइया दी गल बात किवे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू, साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू। आलसियों नहीं आया रास्ता ना दिखलाया, दिल हमारा दे सहारा ख्वाहिशात ना पूरी नू। वारी में जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे, मेरे डोल जुदाइया दी गल बात किवे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। हाँ बड़िया बड़ाइया दी गल बात किवे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, पूरा भी ना होवे, पूरा भी ना होवे। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, Tushar, Amisha, and Jeet for the lovely performance. I think now all of you are energized, right? Yes or no? Yes or no? Okay. Life will give you much more than just a degree, so get ready for all the adventure. Dear students, you have entered a lively, challenging, diverse, and warm community. I hope you experience an array of opportunities to learn and grow, to discover who you are and how you want to make a difference in the world. I would now like to request our in charge of academic committee, Dr. DP Jain Madam, to propose the vote of thanks.
Thank you, Razia ma'am. Very good afternoon, respected Principal ma'am, heads of all department, Dr. Pradeep sir, Dr. Jitendra Tripathi sir, Professor Ruchi Srivastava ma'am, in charge Biotech department, Dr. Dipali Shukla ma'am, Tapti ma'am, all faculty members, and my dear students. I, Dr. Deepi Jain, being academic in charge of ISR IPS Academy, feels distinct pleasure to welcome new students. I congratulate you all to be part of ISR IPS Academy, and I hope you all are going to have nice memory here. Now, I would like to extend my vote of thanks. I am thankful to our director, Dr. Premlata Gupta, for her constant support and continuous encouragement. I extend my thanks to all heads of department, Dr. Pradeep Joshi, Dr. Jitendra Tripathi, Professor Ruchi Srivastava, Dr. Dipali Shukla. Thank you for your enormous cooperation in the organization of the event. For a smooth conduction of induction ceremony, I am thankful to efforts of Dr. Razia Sultana from Department of Biotechnology, Dr. Amit Singh Thakur from Department of Chemistry, Dr. Akansha Tripathi, Department of Social Work. Thank you. I am thankful to management, all faculty members, staff of ISR, without whose helping hand this event wouldn't have been possible. I would like to extend my thanks to students who participated in play and presented big problem of depression with solution. My special thanks to team of e-learning department for helping us and for being available all the time with open hearts. Last but not least, I thank all the students for showing their interest in the program and keep listening with patience. Thank you, everyone. Thank you, DP ma'am. We are coming to the end of this program. May God give us strength to endure our struggles and bring buoyancy, positiveness, and passion in the coming days. Coming to the end of this program, I, Dr. Sultana Razia from Biotech Department, thank you all for your gracious presence.